Hey all 10th graders, let me know how are you doing. I hope all of you are doing very good. You are absolutely hustling. And so I am back with this lecture, acid, bases and salts, especially on the request of all the 10th graders. So without much ado, let us start. So I am starting off with this lecture, and it goes without saying, if you do like my video, please consider liking, sharing and subscribing it, and please do share it with your friends. Okay, so let us start the the lecture. And before that, I will close my camera, so avoid any distractions like this. I hope I'm clearly audible to you. I'm not visible, I know, but I hope I'm clearly audible to you. So what all topics are we going to discuss today? So topic number 1 is introduction to acids and bases and salts, classification of matter, what is an acid or a base, ionizable and non-ionizable compounds are going to be discussed. Then again we'll come to the topic acids and base and we'll discuss it in much more detail. Then we are going to start with the Arrhenius theory, और फिर उसके बाद हम करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, फिर फिजिकल टेस्ट पढ़ेंगे एसिड के टेस्ट से और इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. आई होप यू एन्जॉय इट. तो शुरू करते हैं. लेट अस बिगिन. लेट्स बिगिन. Oh, I'm trying being humorous. Let us erase this. You all are 10th graders now. No more jokes. Let's straight get to the lecture. So now we are going to start the chapter. A salt is formed. Just a second. Let me enlarge this. And this is better. A salt is formed when hydrogen ions are replaced. Salt का form होता है when hydrogen ions are replaced by a metal or an ammonium ion in an acid. Salt तब form होता है जब hydrogen ions को replace कर दिया जाता है किसी metal या फिर ammonium ion से in an acid. ठीक है, अभी इस पे और clarity मिलेगी as soon as we proceed to the lecture. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, you will get more clarity on this. Okay, we'll move ahead. A base is a material that reacts with an acid to produce just water and salt. Water और salt produce करता है base जब वो acid के साथ react करता है. When a base reacts with an acid, it produces water and salt. This is extremely important. और बाद में हमें पता चलेगा कि इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड और बेस के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. इतनी बात समझ में आ जाती है. आगे बढ़ते हैं. Bases are commonly found in household cleansers. Bases हमें generally household cleansers में मिलते हैं जो कि oil remove करने के काम आते हैं. Windows से, floors से, soaps की बात कर लें, toothpaste की बात कर लें, basically जो cleaning के काम आते हैं they are bases. Bases are used for cleaning. Egg whites, dishwashing liquids, हाउस होल्ड अमोनिया, ये सारी चीज़ें काम आती है क्लीनिंग के. मोस्टली चीज़ें आप देखो, टूथपेस्ट टूथ क्लीनिंग, टीथ क्लीनिंग के काम आता है. सोप्स, डिश वॉशर्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्लीनिंग के काम आती हैं और इनमें बेसेस होते हैं. नाउ आई विल टेल यू व्हाई हैव आई एडेड सच फोटोज़. इट इज़ जस्ट टू अपील टू योर विजुअल कॉर्टेक्स. दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए है. नाउ आई विल रिमूव दिस एंड शो यू समथिंग. नाउ यू सी द फर्स्ट फोटो.
It is the picture of ammonia. I'll show you. Just wait for a second. Can you see the bottle of ammonia now? This is ammonia solution, concentrated solution of ammonia. और इसका फॉर्मूला होता है NH3, जो कि आपको बॉटल पे भी लिखा हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो अब आपको इससे याद रहेगा कि वी हैव सीन अमोनिया सॉल्यूशन एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ बेस. ये चीज़ अब आपको याद रहेगी. वन मोर थिंग आई विल एड ऑन टू दिस. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. नाउ यू कैन सी थिंग्स लाइक मिल्क एंड टोमेटो. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स. इनमें कुछ कुछ एसिड्स हैं. कैन एनी वन टेल मी विच एसिड इज़ फाउंड इन मिल्क? मिल्क में क्या मिलेगा हमें? लैक्टिक एसिड. इट्स जस्ट फॉर नॉलेज. ओके, लैक्टिक एसिड मिलता है. टोमेटो में कौन सा एसिड मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा. ठीक है, सो दीज वर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स. एक और एग्जाम्पल है बेस का, सोप्स. और यहाँ पे मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सोप ब्रांड. ओके, इट इज़ जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ अ सोप. और एक रैंडम पिक मैंने उठा ली है. ठीक है, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ सोप ब्रांड. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोप. और ये बेसिस के एग्जाम्पल हैं. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स. जस्ट टू मेक यू ऑल रिमेंबर दिस. ठीक है, हमने बेसिक पढ़ लिया. व्हाट इज़ एन एसिड, व्हाट इज़ अ बेस, व्हाट इज़ अ सॉल्ट, वेयर आर दे यूज्ड. अब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन. So the next slide gives you the introduction about the acid and bases. Okay, I think it is visible to you. A substance that tastes sour in water, turns blue litmus to red and neutralizes bases is known as an acid. तो acid के 3 characteristics हमें इस एक लाइन में बताए गए हैं. पहली चीज़ कि ये sour होते हैं. दूसरी चीज़ कि ये blue litmus को red में change करते हैं. We will know the details of each of these. These are just the basic introduction to what we are going to study in a great depth. और न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिस को. अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक इंसाइट पढ़ा था कि एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. और इसके रिएक्शन से हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. इफ़ द एक्वस सोल्यूशन टेस्ट बिटर, अगर बिटर टेस्ट मिल रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, देन इट इज़ अ बेस. देन इट इज़ अ बेस. सो व्हाट ऑल क्वेश्चंस you can get from this page, or I would say this paragraph. एसिड के 3 करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकता है. सोर्स टेस्ट करना वाटर में, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देना और बेसिस को न्यूट्रलाइज करना. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं एसिड्स की. और सिमिलरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिस की. बिटर टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करना और एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना. ये हो गया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड और बेस की. अब हम पढ़ेंगे थोड़े समय बाद कि हर एसिड और बेस को चेक करने के लिए हम उसको टेस्ट नहीं करते हैं. जैसे यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप सभी ने कुकुम्बर खाया हुआ है तो आप जानते हैं कि खीरे का टेस्ट कैसा होता है. इट समटाइम्स टेस्ट बिटर, राइट? इसमें होगा बेस. ये तो आप खा के टेस्ट कर सकते हैं, पर क्या हर एसिड और बेस को आप खा के टेस्ट करते हैं? आई डोंट थिंक दैट. और ये तो डेंजरस भी हो सकता है यार. ये होते हैं वीक एसिड्स और बेस जिनको हम खा सकते हैं या जो हमारे फूड्स में मिलते हैं. जैसे कि टोमेटो हो गया, टोमेटो में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा, मिल्क में हमें लैक्टिक एसिड मिलेगा. वी कैन ईट ऑल दीज आर ईटेबल्स. पर बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते. बहुत सारे बेसेस ऐसे हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते और टेस्ट करके चेक नहीं करते. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल टेस्ट. ठीक है, टेस्ट कर करके चेक नहीं करना. अच्छा, सॉल्ट की बात करते हैं. सॉल्ट एक न्यूट्रल मटेरियल है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता लिटमस पे. एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा. अच्छा, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि ये एसिड है या बेस.
और भी काफ़ी तरह के इंडिकेटर्स हैं जैसे कि फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा कि एक न्यूट्रल मटेरियल है. अब थोड़ा सा इंसाइट दे देते हैं कि सॉल्ट क्या है. तो सॉल्ट एक एसिड और एक बेस से बन रहा है जिसका कॉम्बिनेशन हो जाता है न्यूट्रल अलॉन्ग विद वाटर की मेकिंग. फिर से मैं बताऊंगी वही चीज़ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. अब तक तो आपको 3-4 बार मैंने बोल दिया, याद ही हो गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. ओके, सो एसिड टेस्ट सॉर इन वाटर, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड न्यूट्रलाइजेस बेसिस. ये हो गए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड के. बेसिस के 3 कैरेक्टरिस्टिक, बिटर टेस्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है और बेस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है. सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉल्ट होता है न्यूट्रल और उसका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर वी क्लासिफाइंग मैटर. कॉम्पोजिशन के बेसिस पे एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है या मिक्सचर्स है. ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा. आई थिंक क्लास 8-9 तक आपने अच्छे से पढ़ लिया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं. स्टेट के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज. सॉल्युबिलिटी, सस्पेंशन, कोलॉइड्स और सॉल्यूशंस के बारे में भी यू हैव ऑलरेडी रेड. नेक्स्ट वन, ये क्या हो गया. हाँ जी, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कोवैलेंट, आयनिक, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं. इट इज़ जस्ट अ प्रीकैप और आई वुड से रीकैप of whatever you have studied in the past classes, previous classes. What is an acid or base? अब आते हैं हम मुद्दे पे. एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं. उसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड. आयनाइजेबल कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाए, यानी जब उसकी एक्वस सोल्यूशन बनाई जाए या फिर वो अपने मोल्टन स्टेट में हो, तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, आयंस में अलग हो जाए ऑलमोस्ट एंटायरली. पूरा का पूरा कंपाउंड्स आयंस में ब्रेक हो जाए, जैसे NaCl, HCl, KOH एक्सेट्रा. नाउ इफ़ यू हैव रेड सम बेसिक्स, आपको पता होगा कि अगर हम बात करें तो NaCl इज़ कॉमन सॉल्ट. जो नमक हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, दैट इज़ NaCl ओनली. इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व कराएंगे तो हमें मिलेगा Na+ और Cl-, यानी कि सोडियम केटायन और क्लोरीन एनायन. सोडियम का केटायन मिलेगा और क्लोरीन का क्या मिलेगा, एनायन मिलेगा. You have learned the basics in your previous classes. आपको पता होगा कि कौन सा चीज़ केटायन होता है. कि पॉजिटिव चार्ज के साथ होना यानी कि केटायन, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है कोई आयन तो दैट इज़ एनायन. अब हम बोल क्या रहे हैं. नाउ वी विल कम टू दिस चैप्टर कि ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है. एसिड्स वो हैं, या आई वुड नॉट टॉक अबाउट एसिड्स. हम बातें करते हैं चलो आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में. तो आयनाइजेबल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुलने पर, एक्वस सॉल्यूशन बन जाने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस और कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो जाते हैं. सिंपल. जो कंपाउंड पूरी तरह से कैटायंस और एनायंस में टूट जाए आफ्टर बीइंग डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, दैट इज़ योर आयनाइजेबल कंपाउंड, यानी वो आयनाइज हो सकता है. सिमिलरली नॉन आयनाइजेबल कौन से कंपाउंड्स होंगे, जो टूट नहीं सकते, जो एंटायरली एक मॉलिक्यूल हैं और आयनिक तो नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. वो इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे. अगर उनको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो भी नहीं टूटेंगे. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल हियर. यहाँ पे आ जाते हैं वापस. जैसे हम पढ़ रहे थे आयनाइजेबल कंपाउंड के एग्जाम्पल, NaCl, KCl, KOH एक्सेट्रा. नॉन आयनाइजेबल जैसे कि ग्लूकोज जो नहीं टूटे, एसीटोन जो नहीं टूटे. They do not dissociate into ions when dissolved in water. या तो उनके मोल्टन स्टेट में रखा गया हो या उनको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो आयंस में ना टूटे. Conclusion of this page is
जो भी कंपाउंड्स अपने आयनाइजेबल फॉर्म्स में टूट जाएं, यानी कैटाइंस और एनाइंस में टूट जाएं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इनटू वाटर और व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट, दे विल बी कॉल्ड आयनाइजेबल कंपाउंड्स. नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which are not broken into any of its constituent ions, cations or anions when dissolved in water or in molten state. As simple as that. Now the next slide. Acids and bases. Okay. So now we will come to the point. An acid is any hydrogen containing substance that is capable of donating a proton हाइड्रोजन आयन टू अनदर सब्सटेंस. समझ नहीं आया होगा, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ. एसिड एक ऐसा हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन है और वो अपना प्रोटॉन, यू वुड प्रोबेबली नो कि प्रोटॉन इसको कहते हैं, H+ आयन को प्रोटॉन कहते हैं, वो अपना प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन किसी और सब्सटेंस को डोनेट कर सकता है. इफ इट कैन डोनेट its proton into some of the other substance, it will be called an acid. Similarly, base एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम एसिड. तो एसिड और बेस एक कॉम्बिनेशन है. एसिड क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है H+ आयन, दैट इज प्रोटॉन या दैट इज हाइड्रोजन आयन. और बेस क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है कोई हाइड्रोजन आयन को अपने एसिड से या किसी भी एसिड से. एसिडिक सब्सटेंस अपने सोर टेस्ट से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि वीक एसिड खाने लायक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स खाने लायक नहीं होते. यू कैन नॉट ड्रिंक HCl, यू कैन नॉट टेस्ट HI, यू कैन नॉट टेस्ट HF. इस तरीके के एसिड्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते. दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड. पता नहीं इस स्लाइड में लिखा हुआ है, नहीं, अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. दे कैन नॉट बी टेस्टेड. They are not palatable. You cannot eat them. You cannot taste them. It's very simple. Sour taste एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता कि हम हर एसिड को टेस्ट करते चल रहे हैं. Arrhenius theory of acid. अच्छा, क्या ये मैंने बताया हुआ है? I've already told this. Let us discuss it one more time. Acid, bases and salts. इस पिक्चर से आपको सब क्लियर हो जाएगा इफ़ यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन हियर. ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. नाउ लुक एट द फर्स्ट कॉलम. इट इज़ रिटन HCl. HCl इज़ एन एसिड. देखो, पानी में घोला और हमने हमारे एसिड ने हमें क्या दिया? H+ दिया और Cl- दिया. बेसिस ने हमें क्या दिया? Na+ दिया, OH- दिया. सॉल्ट ने हमें क्या दिया? Na दिया और Cl- दिया. नाउ कैन यू सी दैट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ऑल ऑफ देम आर आयनाइजेबल. ये तो दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों ब्रेक हो सकते हैं. तीनों के तीनों अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस यानी कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो सकते हैं, जो कि हमें दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों डिसोसिएट हो गए. नाउ व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई इज एसिड H+ दे रहा है, H+ और Cl-. बेसिस Na+ और OH- दे रहे हैं. Cl- पे ध्यान दें, OH- पे ध्यान दें. ये क्या दे रहा है? H+ दे रहा है. नाउ लुक एट कॉलम 1. HCl विच इज़ एन एसिड gave us H+ और Cl- दिया. NaOH जो कि बेस है, उसने Na+ दिया और OH- दिया. NaCl जो कि एक सॉल्ट है, उसने हमें क्या दिया? Na+ दिया और Cl- दिया. नाउ फिर से कॉलम 1 को देखो. कॉलम 1 ने हमें दिया H+ जो कि एक एसिड देता है. कॉलम 2 ने हमें दिया OH- जो एक बेसिक देता है, जो एक बेस देता है. ठीक है, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अब कॉलम 3 देखो. कॉलम 3 हमें Na+ और Cl- दे रहा है. तो क्या आप देख सकते हैं और क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो Cl- था वो एसिड से आया और इसका जो Na+ था वो बेस से आया. क्या इससे ये चीज़ आइडेंटिफाई और वेरीफाई भी हो जाती है कि एक सॉल्ट तब बनता है जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करके
यूटिलाइज होता है तब सॉल्ट बनता है और अलॉन्ग विद दैट वाटर बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम थ्योरीज पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड ऑल द थ्योरीज कि लोगों ने, और आई वुड बेटर से साइंटिस्ट ने क्या कहा, एसिड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अलग अलग लोगों ने एसिड की क्या क्या डेफिनेशन दी, अलग अलग साइंटिस्ट ने बेस की क्या क्या डेफिनेशन दी। और ये चीज़ अभी के लिए हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि एक सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के फ्यूजन से बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो इसका एनायनिक पार्ट है, जो इसका Cl वाला पार्ट है, Cl माइनस वाला एनायनिक पार्ट, वो एसिड से आया है और कैटायनिक पार्ट बेस से आया है। अभी के लिए मुझे इतना ही एक्सप्लेन करना था इस पिक्चर से। अभी आगे पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग क्या क्या थ्योरीज देते हैं एसिड और बेस के बारे में। सो नंबर 1 थ्योरी विच वी विल स्टडी इज अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस। एक भाई साहब थे अर्हीनियस, ठीक है, उन्होंने दी एसिड और बेस की थ्योरी। क्या कहा उन्होंने कहा अर्हीनियस के हिसाब से एसिड वो है जो जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो H+ दे या H3O+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन दे। भाई अब H+ तो हमने देख लिया, हमें दिखा कि जब HCl, अभी तो हमने पिक्चर में देखा ना कि जब HCl डिसॉल्व हुआ तो उसने H+ दिया और Cl- दिया। नाउ सम ऑफ यू मे आस्क कि H3O+ कहाँ से आया, HCl तो दिखाई दिया, H3O+ कहाँ से आया। तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल और मैं दिखाती हूँ कि H3O+ कहाँ से आएगा। फिलहाल के लिए इधर कंसंट्रेट करो। HCl हमें H+ और Cl- दिया, दैट्स फाइन, बट नाउ अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने बोला था कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये H+ दे। तुम दिमाग लगाओ कि क्या वाटर का मतलब ये होता है H2O, और मुझे बताओ एसिड ने हमें H+ दिया तो क्या ये H3O+ नहीं हो गया। थिंक ऑफ इट गाइज, थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है और आपको बताना है कि क्या ये H3O+ नहीं हो गया। H2O इज़ वाटर, H+ एसिड से मिला, क्या H3O+ नहीं मिल गया हमें। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसीलिए कई बार कहते हैं कि एसिड वो चीज़ है जो जब पानी में डिसॉल्व हो तो हमें H+ दे और H3O+ आयन दे, या तो H+ दे या H3O+ आयन दे। और ये सारा एक्वस मीडियम में कहानी चल रही है, या तो मोल्टन स्टेट में चल रही है या एक्वस मीडियम में चल रही है। फिलहाल के लिए टिल द टाइम वी आर कंसर्न्ड अबाउट, जब तक हम अर्हीनियस की बात कर रहे हैं तब तक हम एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। अर्हीनियस बेस का एग्जाम्पल, अर्हीनियस बेस के लिए उसने क्या कहा, जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो OH- दे, OH- आयन दे, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे। कई बार हाइड्रोक्साइड आपको लिखा हुआ मिलेगा, OH- नहीं मिलेगा। डोंट गेट कंफ्यूज, हाइड्रोक्साइड इज द सेम एज OH-। यू सी, अभी 2 मिनट हुआ हमें डिस्कस किए हुए इस चीज़ को, इस पिक्चर को। आई थिंक आप इस चीज़ को भूले नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि NaOH जो कि एक बेस है वो हमें OH- दे रहा है और वो हमारे लिए Na+ भी फर्निश कर रहा है। और एक बात जो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि एसिड हो, बेस हो या फिर NaCl हो यानी कि सॉल्ट हो, तीनों ही आयनाइजेबल हैं, यानी तीनों ही अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो सकते हैं। So everything which you can conclude from this page is Arrhenius gave a theory of acid and base, in which he said that acid is something which when dissolved in water can give H+ ion or H3O+, that is hydronium ion. Either it can give a hydrogen ion or a hydronium ion when dissolved in water. This is important. This theory can get you 2 marks. Also, Arrhenius base when dissolved in water gives OH- ion. Very simple. Now we have come to the end of the Arrhenius concept. Also, we will discuss some examples कि Arrhenius के हिसाब से एसिड और बेस क्या है। तो Arrhenius के हिसाब से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड is an acid. Sulfuric acid we already know, H2SO4 is an acid. Nitric acid HNO3 is an acid. अच्छा ठीक है, ये सब तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं यार कि HCl हमें पता है, अभी तक हम इतना पढ़ लिए कि वी नो दैट HCl H2SO4
HNO3 is an acid. Can we verify it somehow? थोड़ा सा वेरीफाई भी करके देखते हैं कि भाई साहब अरेनियस जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे या नहीं. लेट अस आइडेंटिफाई. देखते हैं कि कितने सही हैं. ओके, ज़रा सा गड़बड़ हो गई मेरे से. ओके, लेट अस वेरीफाई. HCl की बात करते हैं. HCl when dissociates gives you H plus and Cl minus. ओह, ये तो H plus दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड है. H2SO4 when dissociates gives 2H plus plus SO4 2 minus. इसका मतलब भाई साहब ये भी एसिड है. HNO3 when dissociates gives H plus NO3 minus. इसका मतलब ये भी एसिड है. That means Arrhenius, ओए जो भी स्पेलिंग है इसकी. सो Arrhenius was correct. अभी तक तो ये सही जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है. वेल एंड गुड. लेट अस सी ये बेसिस के बारे में क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं. NaOH when dissociates gives Na plus plus OH minus. ये सही है. KOH when dissociates gives K plus plus OH minus. This is also correct. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट करता है तो ये देता है कैल्शियम 2 प्लस प्लस OH माइनस, और वो भी 2. इसका मतलब अर्हीनियस जो एसिड और बेस के बारे में अब तक बोल रहे हैं वो सब हम वेरीफाई कर सकते हैं. उनके एग्जाम्पल से वेरीफाई किया जा सकता है कि हाँ अर्हीनियस जिस हिसाब से अभी तक चल रहे हैं दैट इज़ करेक्ट. पर अब भाई ये तो साइंटिस्ट हैं और ये है साइंस, तो ये है डायनेमिक. स्टैटिक तो है नहीं. किसी ने कुछ बोल दिया और बाकी सब ने मान लिया, ऐसा तो होगा नहीं. कोई ना कोई तो किसी ना किसी को तो चुल होगी यार. कोई ना कोई कुछ और कहेगा, नहीं भैया तुम सही नहीं हो. अच्छा तो फिर इसके बारे में बताओ. अगर तुम इतने ही सही हो तो हर एग्जाम्पल को प्रूफ करके दिखाओ. क्या तुम हर एग्जाम्पल को प्रूफ कर सकते हो? क्या तुम कह सकते हो कि हर एसिड पानी में H प्लस रिलीज करेगा ही करेगा? क्या तुम कह सकते हो कि हर बेस पानी में OH माइनस रिलीज करेगा ही करेगा? नोबडी नोज. जैसे जैसे हमारे चैप्टर की लेयर्स खुलती जाएंगी हमें पता चलता जाएगा कि सबको चुल है यार. किसी ने अर्हीनियस की बात नहीं सुनी. देखो आगे क्या होता है. तो लो भाई आ गए एक और भाई साहब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी लेके. 2 लोग हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी. इन्होंने अपना दिमाग लगाया. इन्होंने कहा इतनी आसानी से कैसे बात मान ले अर्हीनियस की, हम कुछ और दिमाग लगाते हैं. चलिए इन्होंने क्या कहा वो भी पढ़ लेते हैं. इन्होंने कहा ब्रॉन्स्टेड एसिड इज़ एन H प्लस डोनर एक्वस और ब्रॉन्स्टेड बेस H प्लस एक्सेप्टर है. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H प्लस को डोनेट करने वाला एक्वस मीडियम में एसिड कहलाता है. H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला बेस कहलाता है. इनके हिसाब से OH माइनस वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है. अर्हीनियस ने कहा था कि एसिड पानी में H प्लस रिलीज़ करता है और बेस पानी में OH माइनस रिलीज़ करता है. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा नहीं, जो H प्लस रिलीज़ करे डोनेट करे वो H प्लस डोनर होगा, वो एसिड होगा. जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो H प्लस एक्सेप्टर होगा यानी कि बेस होगा. इनका पूरा कॉन्सेप्ट H प्लस के अराउंड रिवॉल्व करता है. ये OH माइनस की बात नहीं करते. देखते हैं अब ये कितने सही हैं. एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने. इन द रिएक्शन HCl प्लस NH3. HCl एक एसिड है, बहुत अच्छी बात है. NH3 अमोनिया बेस है. वी हैव ऑलरेडी रेड. अभी पहले पेज पे हमने पढ़ा था कि HCl एसिड और NH3 बेस है. अच्छी बात है. तो अगर एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए सॉल्ट और वाटर. चलो हमें मिल रहा है अभी एक सॉल्ट NH4 प्लस Cl माइनस, ये हमें सॉल्ट मिल रहा है. HCl एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है जो कि H प्लस डोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है. Cl माइनस उसका कॉन्जुगेट एसिड है. अभी इस चीज़ को छोड़ देते हैं. NH3 ब्रॉन्स्टेड बेस है जो H प्लस एक्सेप्ट करता नज़र आ रहा है. ये देखिए NH3 है यहाँ पे और रिएक्शन के बाद यहाँ हो गया NH4 प्लस, यानी कि ये एक H प्लस एक्सेप्ट कर चुका है.
HCl से एक H प्लस गायब हो गया, यानी इसने एक एसिड एक H प्लस डोनेट कर दिया। ये एक एसिड का काम कर रहा है जो एक H प्लस डोनेट कर रहा है, यानी अभी तक तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या है? एक एसिड जब अपना H प्लस डोनेट कर दे, एक एसिड जब अपना H प्लस डोनेट कर दे, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, यहाँ पे होगा कॉन्जुगेट बेस। H प्लस डोनेट करने के बाद जो भी उसके पास बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो उसके पास बन जाएगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे अभी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस से आपके स्टैंडर्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट, फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो फिजिकल टेस्ट, फिजिकली आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है? दो तरीके हैं एसिड और बेस फिजिकली आइडेंटिफाई करने के, बिना किसी केमिकल यूसेज के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, टेस्ट से और इंडिकेटर के इफेक्ट से। तो पहला टॉपिक आता है टेस्ट। तो कैसे हम टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस वो बेस है या वो एसिड है? तो बहुत पहले और अभी तक हम 2-3 बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड जो होता है वो सार टेस्ट का होता है और बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट का होता है। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी, जब भी आपने टमाटो खाया होगा तो आपको खट्टा सा लगा होगा, सार टेस्ट लगा होगा, और जब आप कुकुम्बर खाते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ पीसेस क्या होते हैं, बिटर आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द मेथड ऑफ टेस्ट इज नॉट एडवाइज्ड एज एन एसिड और अ बेस कुड बी कंटामिनेटेड और कोरोसिव। ये बात पहले भी मैंने डिस्कस की है, सेम यही चीज़ बोली थी कि हर एसिड हर बेस को खा के नहीं देखना होता, हमें टेस्ट के थ्रू एक मेथड दिया गया है कि हाँ ठीक है, फिजिकल टेस्ट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर मोस्टली एसिड्स और बेस को आप फिजिकली टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई एसिड कंटामिनेटेड हो सकता है किसी एसिड में किसी और हार्मफुल सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज़ हों जिन्हें खाया ना जा सके, या तो कोरोसिव हो सकता है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत कंसनट्रेटेड एसिड हो सकता है, जैसे कि HCl। कुछ एसिड ऐसे हैं जिनको आप खा नहीं सकते, उनको क्या कहा था मैंने, मिनरल एसिड कहा था कि इन एसिड्स को टेस्ट कर करके चेक नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने, द फ्लेवर्स ऑफ कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस। कर्ड की बात की इन्होंने, लेमन जूस की बात की, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारे सार होते हैं टेस्ट में। क्यों? क्योंकि इनमें एसिड्स होते हैं, इनके पास एक सार फ्लेवर होता है। बेकिंग सोडा देख लीजिए, बेकिंग सोडा क्या है, उसके पास एक सार फ्लेवर है। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ी सी क्लैरिटी रख सकते हैं कि टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर मोस्टली चीज़ों को हम टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बेकिंग सोडा में यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख रखा है इसने, बेकिंग सोडा बेस होता है, ठीक है, बेसिक होता है, बेस होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन ना हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ। ये सार फ्लेवर नहीं होगा यहाँ पे, इट इज़ अ बेस, ठीक है, ये एसिड नहीं है, ये बेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स ऑन एसिड और बेस। इंडिकेटर्स का क्या इफेक्ट आता है एसिड और बेस पे? इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो चेंज दिखाता है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कलर में या ओडर में। जब उसको एसिड और बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस शो करता है, और इसीलिए हम इसे इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि वो इंडिकेट करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज दिखाता है, कलर में चेंज दिखा सकता है, ओडर में चेंज दिखा सकता है जब एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाया जाए। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं एसिड और बेस के प्रेजेंस में। अभी आगे पढ़ते हैं कौन से इंडिकेटर्स हैं, वो कौन सा कलर दिखाते हैं। आ गया लिटमस। तो लिटमस पेपर जो है बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, वेल नोन इंडिकेटर है। इसमें क्या क्या आपको चेंजेस दिखेंगे, लेट अस सी। न्यूट्रल सोल्यूशन में ये पर्पल रहता है। न्यूट्रल सोल्यूशन यानी एग्जांपल हो गया सॉल्ट। सॉल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस है,
जिसमें वो पर्पल कलर शो करेगा। कौन? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर विच विल शो डिफरेंट कलर्स इन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ डिफरेंट सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप ऑफ पेपर इन 2 वेरियंट्स। रेड लिटमस भी मिलता है और ब्लू लिटमस भी मिलता है। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी कि बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है और एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। दिस इज द मैजिक ऑफ लिटमस पेपर। An acid turns moist blue litmus paper to red and base turns moist red litmus paper to blue. The same lines are given. Similarly हमारे पास और भी इंडिकेटर्स हैं जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोप्थलीन हो गया। अब ये क्या डिफरेंट कलर शो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज कलर शो करता है, इसके नाम में ये ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, तो न्यूट्रल में ये ऑरेंज कलर शो करेगा। एसिडिक में ये रेड शो करेगा जस्ट लाइक लिटमस पेपर। बेसिक में येलो शो करेगा। लिटमस क्या शो करता था? ब्लू शो करता था। बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? बेसिक सोल्यूशन को येलो से इंडिकेट करता है। फिनोप्थलीन क्या करता है? न्यूट्रल सोल्यूशन में ये कलरलेस है, कोई कलर शो नहीं करता। एसिडिक सोल्यूशन में ये कलरलेस ही बना रहता है और बेसन में ये पिंक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनोप्थलीन हमें एसिडिक सोल्यूशन हेल्प नहीं करता, एसिडिक सोल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं करवाता, क्योंकि वैसे भी वो कलरलेस है। एसिडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे भी वो कलरलेस ही बना रहता है। तो फिनोप्थलीन इज़ अ वेरी यूजफुल इंडिकेटर व्हेन वी यूज टू आइडेंटिफाई इट फॉर द बेसिक सोल्यूशन। जब बेसिक सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा, तो ये हमें हमारी मदद करेगा। एसिडिक सोल्यूशन में ये किसी काम का नहीं है। I hope you liked my presentation. If so, do consider liking, commenting, sharing it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.